Regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. So there are organisms that can grow into a new individual from their own body parts. So how do they grow into a new individual from their own body part? By differentiating the body parts. So let us see how does it happens. If the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. For example, Hydra and Planaria. So Hydra and Planaria is an organism which can develop its lost body part or cut or broken body part into a new individual. This is known as regeneration. Regeneration means what? Reform. To generate into a new individual once again. Regeneration is carried out by specialized cells. So there are some specialized cells needed for regeneration. These cells proliferate and make large numbers of cells. Proliferate means what? They will increase its number, and by increasing the number it will grow into large number of cells, and these large number of cells will then differentiate to form a new individual. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. So we will understand regeneration with the help of diagram. So here you can see the diagram of a planaria. This is a fully grown matured planaria. Suppose due to some accident or due to some abnormal conditions it got broken down into these three pieces. Now these three pieces will grow into individual planaria. अब यहाँ पर जो ये थ्री पीसेस में ब्रेक हुआ था प्लेनेरिया, यहाँ इसके थ्री पीसेस जो हैं वो एक एक फुल्ली ग्रोन न्यू इंडिविजुअल प्लेनेरिया में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, मैच्योर करेंगे. ओके, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू फ्रैगमेंटेशन. जैसे फ्रैगमेंटेशन के मेथड में भी क्या हुआ था, 2-3 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ था स्पाइरोगायरा, और वो सारे फ्रैगमेंट जो है एक न्यू स्पाइरोगायरा में डेवलप कर गया था. तो इन द सिमिलर वे प्लेनेरिया भी क्या करेगा, यहाँ पर डिफरेंट पीसेस में जो ये ब्रेक हुआ है या कट हुआ है वो ग्रो करेगा एक नए इंडिविजुअल फुल्ली ग्रोन प्लेनेरिया में. So by this method, okay, by this regeneration method, a planaria is able to reproduce. So the mode of reproduction in case of planaria is asexual reproduction, and within that asexual reproduction, the type of asexual reproduction is regeneration. प्लेनेरिया जो है वो asexual mode of reproduction शो करता है, और उस asexual में भी different types of reproduction है, तो उन different types में से regeneration method जो है वो प्लेनेरिया follow करता है. सिमिलरली जो हाइड्रा होते हैं, उन हाइड्राज में भी, हाइड्रा के केस में भी जो है वो रीजनरेशन शो करता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा. सो हाइड्रा के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है दैट इज़ हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एज वेल एज इट कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस रीजनरेशन मेथड ऑल्सो. सो हाइड्रा का जो एग्जाम्पल होगा वो बडिंग मेथड से भी होगा रिप्रोडक्शन, और हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट विल सी द बडिंग मेथड दैट अकर्स इन हाइड्रा. सो इसमें क्या होता है, हाइड्रा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, दे हैव रीजनरेटिव सेल्स और रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग. दे हैव द रीजनरेटिव सेल्स दैट रिप्रोड्यूस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ बर्ड. जैसे कि पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो का जो होता है, पोटैटो जो होता है उसमें क्या होता है, एक बर्ड फॉर्मेशन, एक बल्ब फॉर्मेशन होता है, और उस वही बल्ब से फिर क्या होता है, एक नया पोटैटो जो है वो ग्रो करता है. तो सिमिलरली यहाँ पर जो है बर्ड फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में.
This bird then grows, develops into a fully matured hydra after being detached from the parent body. So यहाँ पर क्या है, this is the parent hydra. Parent hydra has grown a bird in its body. Now this bird grows, it develops, and when it becomes fully matured, then it gets detached from this parent body, and then it individually grows into a new hydra. ठीक है. So there are certain steps that you need to keep it in your mind. पहला step क्या है, bird formation. Second is growth of the bird or development of the bird, and third stage is the detachment of the bird. ठीक है, detachment of the bird from the parent body, and then fourth is finally it will grow and develop into a new individual. So your next method is vegetative propagation. There are many plants in which parts like root, stem, leaves develop into new plants under appropriate condition. So these root, stem and leaves, these are the vegetative part. Okay, these are the vegetative parts of a plant. So from these vegetative plant, a new plant grows under appropriate condition. Unlike in most of the animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. So plants have this ability to grow into a new individual from the vegetative part. This property of vegetative propagation is used in the methods such as layering, grafting of many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purposes. So we all know that what is this कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. ठीक है, रोज़ का जो प्लांट होता है उसको हम उसके प्लांट को कटिंग करके क्या करते हैं, फिर से ग्रो करते हैं. तो कटिंग से रोज़ जो है वो ग्रो होता है. शुगर केन का भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी कट करते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं. ग्रैप्स के केस में भी वैसे ही है. तो हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग. दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अगर हम किसी भी प्लांट का सीड लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंगो प्लांट का अगर हम सीड लगाते हैं तो हमें एक लंबे टाइम तक के लिए वेट करना पड़ता है. फॉर ईयर्स वी हैव टू वेट कि वो उसमें से जो है प्लांट जो है वो निकलेगा, सैपलिंग निकलेगा और फिर उसमें से जो है ट्री जो है वो ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा. तो वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम सीड से अगर हम करते हैं. और वही अगर हम मैंगो का क्या करते हैं, कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद फिर उसको अगर हम लगाते हैं या फिर उसके रूट को लेकर के अगर हम लगाते हैं, तो इस तरह से अगर हम मेथड्स यूज़ करते हैं तो ये हमारा टाइम थोड़ा सेव करता है. ठीक है. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको फ्रूट्स या फ्लावर्स जो है वो अर्लियर मिलता है इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिसिंग दिस प्लांटेशन बाय द हेल्प ऑफ सीड लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम कटिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या लेयरिंग कर रहे हैं, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो विल गेट द फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम दैट प्लांट वेरी मच अर्लियर. सो सच मेथड्स also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. अब ऐसे कुछ प्लांट जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज़, जैस्मिन, जिनका जो सीड्स जो है वो वाइबल नहीं है, मीन्स उनके सीड्स को अगर लगाएंगे तो हमको उसमें से प्लांट्स नहीं मिलेंगे, है ना. जिसके सीड्स अगर ख़राब हो गए हैं या वाइबल नहीं है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे. अगर ऐसा केसेस है तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब मेथड अप्लाई करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज़ कि पेरेंट प्लांट में बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है. फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट का एक मैंगो प्लांट है, उसमें बहुत बेस्ट क्वालिटी का वो मैंगो है. तो अगर हम उसका कटिंग मेथड से उसको हम ग्रो करते हैं तो क्या होगा, उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एज इट इज़ हमको नए प्लांट में भी मिलेगा.
बट अगर हम सीड के थ्रू करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो सीड जो है वो किस तरह के कंडीशन में ग्रो कर रहा है, उसको कितना वाटर मिल रहा है, कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट निकलेगा उसका वो टेस्ट या कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सीड कितना अच्छे से ग्रो किया है, कितना वाटर, कितने न्यूट्रिएंट्स उसको मिले हैं। बट अगर हम कटिंग के थ्रू करते हैं मैंगो को, या जो ग्राफ्टिंग मेथड है उसके थ्रू करते हैं ग्रो, तो क्या होगा कि पैरेंट प्लांट से जितने भी कैरेक्टर्स अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यूली ग्रोन प्लांट में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। फर्स्ट तो क्या होगा कि हमें फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो अर्लियर मिलेगा, एंड सेकेंड एडवांटेज इज़ दैट it is possible to propagate the plants such as banana, orange, jasmine that have lost the capacity to produce from seeds. Third advantage is that we will get genetically similar enough plant with that of parent plant. Parent plant के एकदम similar हमको new plant मिलेगा। Next you have this spore formation. This is also a type of asexual reproduction. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. So कुछ simple multicellular organisms होते हैं, lower multicellular organisms होते हैं, जिसमें कि reproductive parts जो है वो easily हम identify कर पाते हैं, देख पाते हैं. The thread-like structures that developed on the bread in activity 8.2 above are hyphae of the bread mold, rhizopus. सो राइजोपस का जो ये डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है, किया गया है, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको, एंड राइजोपस भी इसका नेम है। तो ब्रेड के ऊपर में जो फंगस लग जाता है दैट इज़ द राइजोपस। सो उस राइजोपस का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्लियर जो है स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कुछ रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरह से रूट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, देन यू कैन सी सम स्टेम्स और ब्रांचेस काइंड ऑफ थिंग। फिर उसमें इस तरह से जो है स्पोर बियरिंग स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होता है। ओके, नॉट वेरी मच क्लियर बट वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसमें उसका जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो ये जो हाइफी है या रूट स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। ओके, ये सब इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। On the other hand, the tiny blub on a stick structure are involved in reproduction. इसके जो reproductive part कौन है, ये वाले जो round वाले parts है, these are the reproductive part. The blubs are sporangia. What is the name of this reproductive part? Sporangia, which contains cells or spores. और इसी के अंदर में, इस sporangia के अंदर में क्या होता है, spores होते हैं, इस तरह से spores present होते हैं. So these spores are basically the cells, the reproductive cells that can eventually develop into new rhizopus individual. और यही spores जब इसमें से release out होता है और जहाँ भी ये fall करता है तो वहाँ पर rhizopus जो है वो grow कर जाता है. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. So ये जो outer covering होता है, this outer covering is very much tough covering. जब favorable condition आता है, means जब इसको ऐसा environment मिलता है जहाँ पर कि moisture हो, because ये जो sporangia है, spores हैं, okay, spores जो हैं ये तभी grow कर पाएंगे, mature कर पाएंगे, develop कर पाएंगे जब moisture वाला environment इनको मिलेगा. ये इनके लिए favorable condition होता है अपने number को increase करने का. तो जब मॉइस्चर वाला कंडीशन मिलता है तो ये स्पोर्स जो हैं, ये जो इसका आउटर कवरिंग है, दिस ब्रेक्स, एंड ब्रेक होने के बाद फिर इसमें से स्पोर्स रिलीज़ होते हैं और फिर ये जो है स्पोर जो है वो फिर ग्रो कर जाता है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल राइजोपस. तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है राइजोपस में.